وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز و مکرم علماء کرام اور نوجوان ساتھی اور بزرگوں، میں بیان کے لیے یہاں پر کھڑا نہیں ہوا. آپ حضرات مجھے جانتے بھی ہیں، اور ہم سے پہلے جو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، ان کی بھی تقریر ہوئی، انہیں بھی پہچانتے ہیں. ابھی ہمارے مولانا نور اعظم صاحب انہیں بھی پہچانتے ہیں. بہرحال پہچانتے ہیں پورے علاقے کے تمام علماء کو، لیکن علماء کی کیا قیمت ہے؟ علاقے والے علماء ہے یا نہیں ہے؟ باہر والے عالم ہیں، اور علاقے والے عالم کیا ہے؟ نہیں معلوم. وہ علاقے کے عالم ہوتے ہیں. تو بہرحال مجھے تقریر نہیں کرنی ہے، اور میں تقریر کی نیت سے کھڑا بھی نہیں ہوا، اسی لیے کہ باہر سے آئے ہوئے علماء آ چکے ہیں، ان کی تقریر آپ کو سننی ہے. دل میں تو تھا، ابھی ہمارے مفتی صاحب سے بات بھی ہوئی کہ خرافات اور رسومات دن بدن ہر گاؤں میں بڑھتے جا رہا ہے. اس موضوع پر کچھ بات ہونی چاہیے. اور باہر کے علماء جب تشریف لاتے ہیں، ان کو جب تقریر کے لیے دعوت دیتے ہیں تو ان کو ایک موضوع باندھ دیتے ہیں، یعنی گاؤں کے اندر اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، آپس میں ایک اتفاق اور اتحاد ہو. اس لیے کوئی بھی بدعت کے خلاف کوئی بھی بیان نہیں کرتے، اور بیان ہو کے چلا جاتا، جلسہ بھی ہو جاتا، سب ہو جاتا. لیکن جو بیماری اصل میں ہے، وہ بیماری ہمیشہ کے لیے لگی رہتی ہے. تو دوستوں، میں یہ بات کہنا چاہوں گا، یہ جو بیماری ہے، کینسر والی بیماری مسلمانوں کے اندر جو ہے، یہ بیماری جب آپ سے صحیح ہوگی، آپ کی وہ بیماری آپ سے جب دور ہوگی جب آپ اپنے علاقے کے علماء کی طرف رجوع ہوں گے. کیوں کہ چھوٹی چھوٹی بیماری آپ گاؤں میں فون کر کے رابطہ کر کے آپ جو حل نہیں کر سکتے، اس کا علاج نہیں کر سکتے، آپ اس کا علاج اپنے علاقے کے علماء سے کریں گے، تبھی آپ کی بیماری دور ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے پروگرام اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے، یعنی امت کے اصلاح کے لیے. میں ایک دو بات ادھر ادھر سے کہوں گا. جو ہر پروگرام میں، ہر جلسہ میں علماء جو ہے بار بار کہیں گے چائے کی دکانوں میں نہ بیٹھ کر کے جیسے گاؤں میں آ جائیے. مجھے شرم آتی ہے یہ اعلان کرنے میں کہ مسلمانوں، سب کو جانتے ہو، ایک دینی مجلس قائم کرنے کے لیے 15-20 دن تک اعلان کیا جاتا ہے، اشتہار چھپوایا جاتا ہے، باضابطہ ادب اور احترام استقبال کے ساتھ علماء کھڑے رہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں. پھر بھی غیرت نہیں ہوتی کہ تھوڑی دیر ہم جلسے گاؤں میں جا کے بیٹھ جائیں. ایک تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ ایک عالم ہو کر کے، ایک عالم دین ہو کر کے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اور ہم بے غیرت اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم کو چائے کی دکانوں میں بیٹھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. اگر کوئی نوٹنکی ہو تو کوئی دعوت نہیں، ارے تورے سے بات ہوتی ہے، پھر بھی وہاں جا کر کے بھیڑ لگتی ہے. یہ مسلمانوں کی حالت ہے. مسلمانوں، تم بار بار ٹھوکریں کھا رہے ہو، در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہو، پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ہم علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء ہمارے پیچھے گھوم رہے ہیں راہ راست پہ آنے کے لیے، لیکن ہمیں کوئی غیرت نہیں ہوتی، ذرا سی بھی غیرت نہیں ہوتی کہ ایک عالم دین، ایک نائب رسول ہمیں درخواست کر رہے ہیں، مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں، ادب کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں کہ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مجلس میں آ جائیے، پنڈال کے اندر آ جائیے، پنڈال خالی پڑا ہے. مجھے شرم نہیں آتی، آپ کو بھی شرم آنی چاہیے. ایک غیر لوگ، غیر قوم، یہ کوئی کیا کہتا ہے اس کو،
इस्लाम का जो होता है, बहरहाल वो लोग ये बात नहीं कहते हैं। इससे हमारी कमजोरी जाहिर होती है कि मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक नहीं, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं। जो एक जलसा करते हैं, महीनों पहले ऐलान करते हैं, इश्तिहार छपवाते हैं, खाने का नज़्म करते हैं, फिर भी बेचारे को बार बार गुजारिश करना पड़ता है जलसा में आने के लिए। इसका मतलब मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक नहीं है, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, इसलिए मुसलमान जहां पाओ वहां काटो, इसीलिए हिम्मत हुई। वरना मुसलमान अगर हम लोग उलमा की अहमियत करते, मुसलमान अगर उलमा की बात के मुताबिक चलते, ये बात कहने की जरूरत न पड़ती, तो यकीन मानो हर कौम को ये मुसलमानों के अंदर एक दहशत पैदा होता है। लेकिन आज हम लोग को गैरत नहीं होती, खाली गलती पर गलती, गलती पर गलती, हमेशा उलमा की ऐब तलाशते, खूबी नहीं तलाशते। किसी भी एक आलिम से पूछो, उनके पढ़ने के जमाने से लेकर आज तक वो क्या करते हैं, उनसे पूछिए कौम की निगहबानी, उम्मत कैसे ईमान के साथ खात्मा हो, उम्मत मोहम्मदिया का खात्मा ईमान के साथ कैसे हो, इसकी फिक्र लगी रहती है। अब बताओ, जो बचपन से लेकर के 55 तक हमारे फिक्र के लिए रहे, और उनसे अगर कोई गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए, तो सारे एहसानात को हम भूल जाते हैं और एक गलती को लेकर के उसको, उसका सारा इल्म और सारी मेहनत को रद्द कर देते हैं। क्या यही मेरा इंसाफ है? ये आपके गांव की बात नहीं, पूरे इलाके की बात कर रहा था। इतना बड़ा, बताइए कितना बड़ा प्रोग्राम है ये पिंडाल है, ये पिंडाल भी नहीं भरा। वजह क्या है? मोहब्बत रसूल नहीं। जिसके अंदर मोहब्बत रसूल हो तो फौरन उसके कान में आवाज पड़े, फौरन आ जाएगा। लेकिन एक नुमाइश बना लिया है। इसलिए मैं अक्सर करके कहा करता हूँ, जब मदारिस वाले आप जलसा करो तो एक पिंडाल बना लो, आवाज बाहर तक जाने ना दो। इतने बेहुरमती करते बेगैरत लोग, बेगैरत हमारे मुसलमान भाई, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है और बेगैरती से, बेदर्दी से, बेहुरमती से दुकानों में बैठ करके सुनते हैं। इसलिए कहीं बाहर आवाज जाने की जरूरत नहीं। जितने लोग बैठे होंगे ग्राउंड में, उन्हें तक आवाज पहुंचनी चाहिए। ये हर जलसे वालों को ये इंतजाम करना चाहिए। ये पूरे ये नौटंकी के जैसे पूरे गांव में माइक लगा देते हैं और मौलवी लोग क्या कहेंगे, अरे हजरत मैं तो घर से सुन लेता है जैसा। ऐसा कैसे? घर से सुनने से ये बात में असर कहाँ पैदा होता है? जबकि आपने सुना होगा कि एक आलिम दीन का चेहरा देखना भी इबादत है, फिर आप उसका चेहरा देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे तो एक रहमतों का नुज़ूल होगा, एक समझदारी, वो अकल में जो कूड़ा करकट गंदगी जो भरी हुई है, वो गंदगी साफ हो जाएगी अल्लाह की रहमत से और आलिम दीन की बात आपके समझ में आएगी। ये घर बैठे सुनने से, सुनने वाले, इसीलिए इनकी बीमारी नहीं छूट रही है, नहीं छूट रही है। उलमा पर उंगली करते हैं, आज तक बचपन से लेकर के बूढ़े हो गए, समझ में नहीं आ रही है। हमेशा कहेंगे हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं। उनका अमल देखो, पूरा का पूरा अमल बिदअत है। एक आदमी पैदा होने से लेकर के मरने तक बिदअत ही करते जाता है। और जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, और हम क्या करते हैं? थोड़ा इस्लाम में, थोड़ा कुफ्र में, थोड़ा सुन्नत में, थोड़ा बिदअत में, थोड़ा कुफ्र में, थोड़ा शिर्क में। है कि नहीं? कहाँ मुसलमान है? कैसे मुसलमान? मुसलमान एक होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा एक है। कहीं के भी मुसलमान हो, चाहे अरब के हो, हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, सबका ईमान एक, सबका तरीका एक, सबकी नमाज एक, सबकी सुन्नत एक। लेकिन हम लोग क्या, इंडियन मुसलमान अलग, मुल्लाबाड़ी के मुसलमान अलग, पेमा वाले मुसलमान अलग, तुलसी अड्डा वाले मुसलमान अलग। क्या मेरे नबी ने तो ऐसा नहीं फरमाया? मेरे नबी की हदीस है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक शरीयत दी, उसी शरीयत के मुताबिक चलना ही पड़ेगा। आपकी समझ में आए या ना आए, मुसलमान होगा या काफिर होगा, दो में से एक होगा, बीच वाला तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन हम लोग सब कुछ करेंगे, थोड़ा मौलाना से भी दोस्ती रखेंगे, थोड़ा कुफ्र वालों से भी दोस्ती रखेंगे, थोड़ी मोहब्बत सुन्नत से भी करेंगे, थोड़ी मोहब्बत बिदअत से भी करेंगे। ऐसे हमारा हाल है। दोस्तों, ये मुफस्सल बिदअत क्या चीज है, खुराफात क्या चीज है, ये कितनी बुरी बीमारी है। इस बीमारी के लिए आपको जो इलाके के उलमा
मुफस्सल बताएंगे, कभी भी आलिम के आगे मत जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस जमीन के अंदर दुनिया में अगर डरने वाली कौम, अल्लाह से डरने वाली कौम अगर है तो वो उलमा की जात है। इस बात को ध्यान में रखें। उलमा कभी भी चूक नहीं करेंगे। चूक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन चूक करेंगे नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि यही एक कौम है जो मुझसे डरने वाली कौम है। लेकिन आज हम लोग क्या सोचते हैं, खुद कहते हैं ये मौलाना लोगों को अल्लाह से डरे नहीं। उल्टी बात कहता है, उल्टा चोर कोतवाल को डरता। उल्टी बात कहते हैं, उलमा को अल्लाह से डरे नहीं। और अल्लाह कहता है कि उलमा के अलावा कोई नहीं इस जमीन पर है, डरने वाली कौम अगर है तो आलिम के साथ। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जो आलिम लोग डरते ही नहीं, खुदा से नहीं डरते। तो बाहर दोस्तों, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, इन्नमल आमालु बिन्नियात। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल का दारोमदार नियतों पर है। बस इसमें मैं एक बात कहूंगा कि साहिब बुखारी ने, बुखारी शरीफ के लिखने वाले को इख्तियार था कि कहीं से भी वो शुरू करते, लेकिन ये नियत से क्यों शुरू किया, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। नियत से शुरू करने का मतलब यही हुआ कि साहिब बुखारी, ए बुखारी के लिखने वाले, तू भी अपने तरफ भी मुखातब करके कहा कि ए बुखारी शरीफ के लिखने वाले, तू भी समझ ले कि तेरी नीयत में अगर कुछ खोट हो तो ये बुखारी लिखने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आ रही कि नहीं? तो इमाम बुखारी ने भी यही कहा कि अमल का दारोमदार नीयतों पर है। दोस्तों, ये जलसा करने वाले और कराने वाले, गांव वाले, इलाके वाले, सबकी नीयत एक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और नीयत क्या होनी चाहिए कि हम लोग जो ताउन किए हैं, किसी को देख करके नहीं, किसी आलिम को चेहरा देख करके नहीं ताउन किया है, किसी की शख्सियत को देख करके चंदा नहीं दिया है। चंदा क्यों दिया है कि एक दीनी प्रोग्राम होगा, एक दीनी मजलिस बैठेगी, उसके लिए मैंने ताउन किया है। और आजकल एक अजीब सी रिवाज बना हुआ है, क्या कि ये फलाने मौलाना है, ये इसका नाम है, इसको नहीं देना चंदा, ये फलाना मौलाना आने से मैं चंदा नहीं दूंगा, फलाना मौलाना आएंगे तो मैं नहीं बात करूंगा, मैं जलसा में नहीं जाऊंगा। अजीब मामला। अरे बोलने वाले को न देखो, वो कौन बिरादर से ताल्लुक रखते हैं, वो गरीब है या अमीर है, ये देखो, वो मुसलमान है या क्या, वो नहीं देखना। हमें तो ये देखना है कि वो बात किसकी कर रहे हैं, बात कौन कर रहे हैं, यानी कौन शरीयत की बात कर रहे, वो अपनी बात कर रहे हैं या शरीयत की बात कर रहे हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं तो बिला किसी इख्तिलाफ या मोहब्बत से सुनेंगे, इसलिए कि हमको उन शख्सियत से मोहब्बत नहीं, हमको तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से हम सुनते हैं। ये सारी चीजें हमारे इलाके में बहुत बुरी बीमारी है। अल्लाह दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इलाके से, हमसे, आपसे, सबसे ये जो बुग़्ज़ वाली बीमारी है, अल्लाह ताला ये बीमारी हटा दे और हम सबको उलमाए किराम, उन लोगों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।